Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to talk about the topic pedagogical analysis of the photosynthesis. So before starting the topic, let's just understand the meaning of the pedagogical analysis. Pedagogical analysis दो शब्दों से बना है. One is pedagogical or pedagogy, and another one is the analysis. So pedagogy refers to the art or the method of teaching. किसी भी टॉपिक या लेसन या यूनिट को पढ़ाने का जो तरीका होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड द पेडागॉजी, और वी कैन यूज द सिनोनिम्स फॉर मेथड आल्सो हियर. वी कैन यूज द आर्ट और साइंस. Basically, the art or the science of teaching refers to the pedagogy. The second one, that is the analysis, refers to the understanding of something. The understanding or the realizing of any concept is mainly refers to the analysis. So jointly, the pedagogical analysis refers to the realizing or understanding anything or any topic and teaching of that particular topic. तो किसी भी particular topic को या specific topic को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसको समझ के analyze करके realize करके पढ़ाया जाए, ये pedagogical analysis कहलाता है. For example, in this particular video, we are going to talk about the pedagogical analysis of the photosynthesis. So it is not limited up to a one topic. केवल photosynthesis नहीं, pedagogical analysis किसी भी topic का, lesson का, even subject का किया जा सकता है, which is a procedure. तो यहाँ पर pedagogical analysis of the atomic structure हो सकता था अगर ये physics होता तो. Pedagogical analysis of the one particular topic like magnetism in the physics, or we can talk about the pedagogical analysis of the structure of earth or the layers of earth. तो अलग-अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अलग-अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग pedagogical analysis होते हैं, लेकिन इस प्रोसीजर को करने के जो स्टेप्स हैं, दे आर कॉमन. सो कंटेंट जो होगा वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, बट जो प्रोसीजर या जो स्टेप्स होते हैं pedagogical analysis में, दे आर सेम. इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट pedagogical analysis refers to the teaching method of any topic. किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए वो उसका pedagogical analysis कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, pedagogy of the biological sciences mainly refers to the idea of teaching biology. बायोलॉजी कैसे पढ़ाया जाए वो उसका pedagogy है. So जो steps involved होते हैं, there are mainly 4 steps involved. One is the content analysis, writing instructional objectives, selection of the teaching methods and selection of the evaluation technique. तो कंटेंट एनालिसिस का मतलब है जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है कोई भी टीचर या कोई भी एजुकेटर, उसका एनालिसिस करना है कंटेंट का, यानी उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसको प्रिपेयर करने होते हैं. हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव आउटकम दोनों हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं. Objective mainly refers to the purpose of learning that something or that particular topic. हिंदी में कहें तो उद्देश्य, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. फॉर एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी डिजाइन करने चाहिए कि भाई फोटोसिंथेसिस पढ़ने के फायदे क्या होंगे. फायदे ये होंगे कि जो लर्नर होंगे उन्हें पता चलेगा कि ये प्रोसेस काम क्या आता है, ये प्रोसेस होता कैसे, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. और आउटकम क्या है, आउटकम भी रिलेट कर सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव से ही. उद्देश्य क्या था पढ़ने के, कि हमें उस चीज के बारे में पता चले, और आउटकम क्या है कि हमें उस चीज के बारे में पता चल गया है. ऑब्जेक्टिव था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. नाउ what is outcome, we know that what is photosynthesis, so a learner is able to understand the process of photosynthesis. Similarly, किसी भी टॉपिक के लिए, आपके पूरे सिलेबस के लिए, इवन सिलेबस के लिए भी ऑब्जेक्टिव और आउटकम डिजाइन किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट है प्लांट एनाटॉमी. तो प्लांट एनाटॉमी का ऑब्जेक्टिव ये है कि लर्नर को या स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि प्लांट के टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके आउटकम क्या है. उस कंटेंट के आउटकम है कि उन्हें पता चल गया कि प्लांट एनाटॉमी क्या है, टिश्यूज क्या है. तो ऑब्जेक्टिव और आउटकम इस तरह से डिजाइन होते हैं. इन्हें जो है, इन्हें राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये भी कहा जाता है. नेक्स्ट मेथड जो होता है वो होता है टीचिंग मेथड. अब हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड है. हो सकता है कोई नेचुरल फिनोमिना है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल या आपका प्रैक्टिकल कराकर उस टॉपिक को अच्छे से समझाया जाए. हो सकता है कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो उसका डायग्राम बनाकर उस कंटेंट को अच्छे से समझाया जाए. हो सकता है कुछ टॉपिक्स मॉडल से अच्छे समझाए जाते हो. तो अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं. तो नेक्स्ट मेथड जो है वो टीचिंग मेथड है. चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो एनिमेशन हो, या एनी काइंड ऑफ द टीचिंग मेथड और द टीचिंग टूल्स can be used in this particular step.
एंड इन द लास्ट सिलेक्शन ऑफ द इवैल्यूएशन टेक्निक। अब जो ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए हैं उनके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड चूज किए हैं, जो कंटेंट हम पढ़ाने वाले हैं, उनका इवैल्यूएशन टेक्निक क्या होगा, यानी पढ़ाने के बाद ये जज करना या एनालाइज करना कि लर्नर को वो कितना समझ में आया है, वो इवैल्यूएशन टेक्निक से होता है। इवैल्यूएशन टेक्निक में या डिवाइसेस में बहुत सी चीजें यूज की जा सकती है। ओरल इवैल्यूएशन हो सकता है कि आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपने लर्नर से उसने कितना समझा। एग्जामिनेशन हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, और आप उनके अंदर क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जो हर एक टॉपिक के लिए, नॉट ओनली फॉर द फोटोसिंथेसिस, हर एक टॉपिक के पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस का जो है पेडागोजिकल एनालिसिस के एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे किसी भी टॉपिक का पेडागोजिकल एनालिसिस किया जाता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। स्टेप आता है कंटेंट एनालिसिस, इसे इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं हम, या कंटेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन या कंटेंट एनालिसिस डिपेंड करता है ऑडियंस पर। क्या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या आप सेकेंडरी स्टेज यानी 9th 10th में पढ़ा रहे हैं, क्या आप कॉलेज लेवल पर पढ़ा रहे हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस को मैं सेकेंडरी स्टेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, यानी कि 9th 10th क्लास के अकॉर्डिंग। तो उसमें इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले, या किसी भी टॉपिक नॉट ओनली फोटोसिंथेसिस, हमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, यानी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमें बताना होता है फोटोसिंथेसिस है क्या, व्हाट आर सम रॉ मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व, किन किन चीजों की जरूरत होती है। हर एक प्रोसीजर में कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी व्हाट आर सम स्टेप्स। इनमें साथ साथ आप डिराइव कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, यहां आप लीनियरली लिख सकते हैं नीचे। क्या रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, गैस इन्वॉल्व होती है, CO2, वाटर इन्वॉल्व होता है मेनली, और एनर्जी इन्वॉल्व होती है जो खुद प्लांट अपने आप प्रोड्यूस करता है। अदर देन दैट सनलाइट इन्वॉल्व होती है। I must firstly introduce this topic to you guys. फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी सनलाइट हो और वाटर CO2 को मिक्स कर दे तो वो फूड बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट भी है, कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक है, वो इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज यानी कि फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को डिराइव करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट होती है, फूड होता है प्रोडक्ट, जो कि ट्रॉपिक लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है फोटोसिंथेसिस की वाटर और CO2 इन्वॉल्व होंगे। प्लांट क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, स्पेशल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो फूड में कन्वर्ट करता है वाटर और CO2 को। बेसिकली फूड जो है वो चेंज होता है ग्लूकोज में, वाटर की वजह से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो केवल प्लांट के अंदर ये स्पेशल मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल या एक ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो हमें इंट्रोडक्शन में यही सब बताना है कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ये जो फूड बनेगा ये यूज कैसे होता है, और जो ऑक्सीजन गैस बनी है ये कैसे लाइफ के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो राइटिंग द सेम थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन, वी कैन राइट एनीथिंग और वी कैन राइट इन मोर डिटेल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज और द क्लासेस। तो स्टेप्स क्या है, जैसे लाइट रिएक्शंस होते हैं, इसमें ऑक्सीजन बनती है और एनर्जी बनती है। डार्क रिएक्शन होते हैं जो लाइट की एब्सेंस में होते हैं, बेसिकली लाइट पर डिपेंड नहीं है, यानी वो अंधेरे में नहीं होंगे। डार्क रिएक्शन का मतलब वो लाइट पर डिपेंड नहीं है। तो डार्क रिएक्शंस में फूड बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है। साइट क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, लीफ में, मेसोफिल सेल में, ठीक है। बायोलॉजिकली अगर आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ना चाहते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर या फोटोसिंथेसिस प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। राइट नाउ आई एम ओनली डिस्कसिंग द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है, इसके बेनिफिट्स बताने होते हैं। So similar these kind of things, but the raw material as I have already discussed, sunlight का क्या रोल है, CO2 का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, एनर्जी का क्या रोल है, ये सारी चीजें जो है इसका कंटेंट एनालिसिस है या इसका इंट्रोडक्शन है। सिमिलरली किसी भी टॉपिक के लिए ये जो इंट्रोडक्शन है वो उसका जो है उस पर डिपेंड करेगा कि टॉपिक का कंटेंट क्या है, ठीक है। अगर वो फिजिक्स का टॉपिक है तो उसका कंटेंट आपने लिखना है, अगर वो मैथ्स का टॉपिक है तो उसका कंटेंट आपने लिखना है। वी आर डिस्कसिंग द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो हमने इंट्रोडक्शन जो लिखा वो फोटोसिंथेसिस का लिखा है। नेक्स्ट मेथड आता है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखना, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन हम करते हैं। देखिए क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है पढ़ने का फोटोसिंथेसिस। ऑब्जेक्टिव ये है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ photosynthesis,
भाई क्यों पढ़े? इसलिए पढ़े ताकि पता चल जाए फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट रिएक्शंस क्या है, डार्क रिएक्शंस क्या है, फायदे क्या है। ये जो प्रोसेस है जो कि बहुत एक मिरेकल प्रोसेस है लाइफ के लिए, उसके फायदे क्या है? उसे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, फूड मिल रही है। फूड जो है ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो। हर एक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं फूड के, वो प्लांट ही होते हैं। चाहे वो ओशन है तो एल्गी ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो कोई पॉन्ड है तो उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन क्यों ना हो, और कोई फॉरेस्ट हो तो बड़े बड़े ट्रीज ही क्यों ना हो। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है क्यों हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। इसी में अगर हम आउटकम डिजाइन करें तो आउटकम का मतलब है फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ पे होता है, कैसे रॉ मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो ये आउटकम है, बेनिफिट्स क्या है ये भी आउटकम में आएंगे। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप। सिमिलरली अगर थर्ड स्टेप की बात करें यानी कि टीचिंग मेथड्स की बात करें, जो टीचिंग मेथड होते हैं या जो टीचिंग एड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं टॉपिक टू टॉपिक कि किस टॉपिक को किस टीचिंग मेथड से बेटरली जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है मोर बेटर। तो टीचिंग एड में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक मॉडल के बेसिस पर बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस को ग्राफ से भी समझाया जा सकता है, मींस चार्ट से। जैसे लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल जो है पाथवे होते हैं। फॉर एग्जांपल डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल, इनको चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से बताया जा सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकली जब ये कहीं पर भी हो रहे हैं तो इनका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, यानी प्रैक्टिकल वर्क इजी नहीं है। तो इनको चार्ट के मेथड से बहुत अच्छा समझाया जा सकता है, इन्हें लेक्चर मेथड से समझाया जा सकता है, काफी हद तक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे कि डे टाइम पर स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को देखा जा सकता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर लीफ को लिया, उसके स्टोमेटा ओपन है, रिलेट किया जा सकता है कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, केमिकल एनालिसिस कर कर, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके थ्रू भी इसको जो है पढ़ाया जा सकता है। इसको एनिमेशन के जो है मीडियम से या माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है, इमेजेस से, विजुअल से। तो हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। लेक्चर मेथड ऑफ कोर्स हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लेक्चर के थ्रू हम किसी भी टॉपिक को समझा सकते हैं। और अच्छा हो सकता था मुझसे एनिमेशन इमेज से भी समझा पाए, बट लेक्चर मेथड जो है ये तो एप्लीकेबल होता ही होता है। तो टीचिंग एड का मतलब है किस तरह से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। स्टेप होता है इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो ओरल टेस्ट में भी आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, कोई एग्जामिनेशन या टेस्ट जब आप डिजाइन करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं आप। ये जो क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं ये ऐसे टाइप हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें डिफाइन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फिर उसमें सब कुछ बताना है, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ओवरव्यू। तो ऐसे टाइप में ऐसे दिया जा सकता है। ओनली डार्क रिएक्शंस को ऐसे टाइप में दिया जा सकता है, बेनिफिट्स को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये मॉडल क्वेश्चंस हैं जो आप खुद जो है रिप्रेजेंट करेंगे या खुद इनको क्रिएट करेंगे। ये केवल आपसे पूछे नहीं जा रहे हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस जो कि चारों स्टेप्स अपने पास रखता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल जो है हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये पेडागोजिकल एनालिसिस में जो टीचर होता है उसको खुद डिजाइन करने होते हैं। इसी तरह से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आप डिजाइन कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, 1 मार्क्स में, 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखें, ठीक है। या पूछा जा सकता है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या होता है, तो वो होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, थैलेकोइड मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन भी डिजाइन किए जा सकते हैं। MCQ डिजाइन किए जा सकते हैं जिसमें 4 ऑप्शन हो और उनमें से एक जो है वो चूज करना हो। ट्रू फॉल्स डिजाइन किए जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं इवैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं। तो MCQ हो चाहे ट्रू फॉल्स हो, वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, यानी कि फोटोसिंथेसिस है तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं कि डार्क रिएक्शंस अकर ओनली इन डार्क, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट में भी होते हैं, ऑल्दो वो डिपेंड नहीं है लाइट पर। तो इस तरह से इनको मैच या फिर मैच द फॉलोइंग डिजाइन किए जा सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूं लाइट रिएक्शंस और इस तरह मैं लिख दूं स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो फोटोसिंथेसिस टॉपिक जिन्हें पता है, जो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम द व्यू ऑफ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो इसको प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होते हैं थैलेकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से जो है मैच द फॉलोइंग भी डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ये जो चारों मेथड थे बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस के, ये वैसे तो स्टेप वाइज है पर आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं। कैसे ये इंटर रिलेटेड है ये भी हम समझते हैं। द पेडागोजिकल एनालिसिस मेथड इन्वॉल्व्स द 4 स्टेप्स, टोटल 4 स्टेप इसमें होते हैं। 1 2 3 एंड 4। एक होता है कंटेंट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, selection of the teaching method, and selection of the evaluation techniques. This is the designing of the questions. So all of them are related with each other. Formulation objective जो है वो भी related होता है teaching method से, और teaching method भी related होते हैं formulation of objective से। ये तो चारों स्टेप हैं इसके, यानी pedagogical analysis तो है ही, इसको तो चारों से रिलेटेड दिखाएंगे। टीचिंग मेथड और इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, यानी दोनों तरफ एरो दिखाएंगे हम, क्योंकि टीचिंग मेथड जब हम चूज करते हैं तो इवैल्यूएशन पर, इवैल्यूएशन जो टीचिंग मेथड पर भी डिपेंड है, और खुद टीचिंग मेथड जो है वो इवैल्यूएशन टेक्निक्स पर भी डिपेंड है। सिमिलरली ये भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेटेड होता है कंटेंट एनालिसिस से। ठीक है, ये ड्यूल नहीं है, कंटेंट एनालिसिस फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड नहीं है। तो ये इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप है चारों स्टेप्स के बीच में। कहने का मतलब स्टेप वाइज रिलेशन तो है, लेकिन आपस में भी इंटर रिलेशन एक दूसरे के बीच में होता है। सो दिस वाज द इंटर रिलेशन बिटवीन द पेडागोजिकल एनालिसिस स्टेप्स। सो दिस वाज द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस बेसिकली। Similarly for other topics, if you are from the physical sciences background or the geographical sciences background, you can do the pedagogical analysis of your particular topic. So that is all for today. Thank you very much. Have a good time. If you really like the video, kindly share and subscribe the YouTube channel Botany for All. If you are preparing for any exam in which biology is a subject and moreover the botany is a subject, you may get help from this channel. It is having 400 plus videos in the 50 plus playlist. So thank you very much. Have a good time.